बस हो गया जी विजय महाजन यादव भाजपा के थे फिर सभा में आए। चलिए हो गया भैया। ये फिगर का नाम लिख दीजिए। फिगर का नाम जो टॉपिक का नाम वो ये फिगर का नाम लिख दीजिए। टॉपिक का नाम क्या है? मैक्सवेल्स लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। फिगर का नाम वही दे दीजिए। फिगर का नाम वही दे दीजिए, मैक्सवेल्स लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। ये क्या? मैक्सवेल्स लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। अब कुछ पॉइंट आप पहले लिख लीजिए, फिर इन पॉइंट्स को एक कर समझा करने बेटा समझाते हैं। बात समझा रहा ना? चलिए ठीक, जल्दी जल्दी पैराग्राफ कर लीजिए। फ्रॉम द वेलोसिटी कर्व, फ्रॉम द वेलोसिटी कर्व, फ्रॉम द वेलोसिटी कर्व, फ्रॉम द वेलोसिटी कर्व we conclude that, from the velocity curve we conclude that, from the velocity curve we conclude that, we conclude that, from the velocity curve we conclude that, we conclude that। ठीक है ना? नंबर वन लिखिए पहला, लिखिए नंबर वन लिखिए। No molecules of the gas, नंबर वन लिखिए। No molecules of the gas, no molecules of the gas, number one लिखिए। No molecules of the gas is in rest, no molecules of the gas is in rest, is in rest, and the area, and the area, and the area, and the area enclosed between, and the area enclosed between, and the area enclosed between curve and velocity axis, and the area enclosed between curve and velocity axis, curve and velocity axis gives the total number of, gives the total number of, gives the total number of molecules of the gas, gives the total number of molecules of the gas, gives the total number of molecules of the gas। ठीक है, नंबर टू लिखिए, नंबर टू लिखिए, नंबर टू लिखिए। The area of the shaded part, the area of the shaded part, the area of the shaded part, नंबर टू लिखिए। The area of the shaded part lying between, lying between, lying between C and C plus DC, lying between C and C plus DC, C and C, ऐसे लिखिएगा C and C plus DC, C and C plus DC gives number of those molecules, gives number of those molecules, gives number of those molecules which moves, number of those molecules which moves in this velocity range, which moves in this velocity range, which moves in this velocity range, which moves in this velocity range। ठीक है, नंबर 3 लिखिए, नंबर 3 लिखिए, नंबर 3 लिखिए, बड़ा लिखिए। The area enclosed between, the area enclosed between, the area enclosed between curve and velocity axis, the area enclosed between curve and velocity axis, curve and velocity axis, curve and velocity axis shows number of those particles, shows number of those particles, number of those particles, number of those particles which moves, number of those particles which moves either with, which moves either with higher velocity,
which moves either with higher velocity or lower velocity, either with higher velocity or lower velocity is small, whereas most of the molecules of the gas moves with average velocity, ठीक है। फिर देखिए पैराग्राफ के नंबर 4 लिखिए from the curve we see that curve is continuous. From the curve we see that curve is continuous. That is there is continuous distribution of velocity. Continuous distribution of velocity among gas molecules. ठीक है। जरा पूरी कहानी को एक बार पढ़ डालिए और देखिए इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। एक पॉइंट को पहले पढ़िए, एक पॉइंट आपको हम समझाएंगे। ध्यान से पहले पूरी लाइन को पढ़िए, जब हम समझाएंगे तो एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। हो गया, बोल रहे हैं। देखिए समझ पहले देखिए। अब देखिए कुछ कैलकुलेशन हम करके निकालें। देखिए जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर पट्टी आपने खींची है, ठीक है, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी बेटा? डीसी सी से सी डीसी में डीसी सी चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई किसके इक्वल होगी बेटा बताओ तो? डीएन बाई डीसी। किसके इक्वल होगी? डीएन बाई डीसी। बाई बाई एक्सिस में जितनी डिस्टेंस आप लोग वही लंबाई होती है, डीएन बाई डीसी हो गई। तो DC मल्टीप्लाइड बाय DC किसके? DC से DC का क्या है बेटा आपको बताओ? DM। क्या है बेटा आपको बताओ? DM। मतलब क्या कि जो शेडेड पार्ट है आपका, इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा बेटा? DM के। और DM क्या बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। और अगर इसको हम पूरा इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक, तो इस पूरे कर्व का एरिया मिल जाएगा ना। और DM का कंप्लीट इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा? कैपिटल M। है कि नहीं? बात समझिएगा। मतलब ये जो वेलोसिटी और dn by dc में आपने ग्राफ प्लॉट करके कर्व बनाया है, इस कर्व का एरिया किसकी इंफॉर्मेशन देगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। आप क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा, ठीक। और आप ये बताइए, इस कर्व को देख करके आपको एक बात समझ में आ रही है क्या कि ग्राफ हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा बताओ? 0 से।
ग्राफ हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, ठीक है ना। और जीरो पे एरिया भी हमारा क्या है, जीरो। ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है मतलब एरिया हमारा क्या है बेटा, जीरो है। इसका मतलब क्या है कि गैस मॉलिक्यूल का कोई भी गैसियस सिस्टम का कोई भी मॉलिक्यूल बेटा ऐसा नहीं है जो किस पर हो, रेस्ट पर हो, या जिसकी वेलोसिटी बेटा हमारी क्या हो, बात समझ आ रही है। ठीक, पहला पॉइंट आपका ये कह रहा है कि इस ग्राफ से दो चीजें हमको पता चल रही, क्या पहली चीज ये पता चल रही है कि गैस मॉलिक्यूल्स में गैसेस जो हमारा सिस्टम है उसका कोई मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो रेस्ट पर हो। और दूसरी चीज, ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, इस ग्राफ का एरिया इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कि जो भी हमारा सिस्टम है उसमें कितने हमारे मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। बात समझ आ रहा ना। पहला पॉइंट आपका ये कह रहा है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट आपका ये कह रहा है कि ये जो आपने शेडेड पार्ट बनाया है, जो रीजन आपने कट किया है सी से सी प्लस डीसी में, इसका एरिया इसके बारे में बताएगा। इसका जो एरिया होगा वो ये बताएगा कि सी से सी प्लस डीसी में कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पाए जाएंगे, या उन मॉलिक्यूल्स की संख्या जिनकी वेलोसिटी सी से सी प्लस डीसी में क्या करेगी, लाई करेगी। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट बेटा हमारा, तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे ग्राफ को तो आपको ये समझ आएगा। देखिए इधर एरिया क्या है बेटा आपका, कम है ना, इधर देखता एरिया क्या है आपका, कम है। और देखिए इस रीजन में भी एरिया बेटा क्या है आपका, कम है। एरिया कम है कि नहीं है, मतलब क्या, इधर देखिए वेलोसिटी आपकी कम होगी, इधर देखिए वेलोसिटी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। और कम वेलोसिटी हो या ज्यादा वेलोसिटी हो, दोनों के लिए एरिया की वैल्यू देखिए क्या है आपकी, कम है। और एरिया अगर कम है मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या है बेटा, कम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी या तो ज्यादा हो या तो कम हो, उनकी संख्या बेटा क्या होती है, कम होती है। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स हमारे एवरेज वेलोसिटी से क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। इसलिए देखिए बीच में एरिया आपका क्या है, जाते हैं, बीच में एरिया आपका क्या है, जाते हैं। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है हमारे, उनकी जो वेलोसिटी होगी ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की, वो कौन सी वेलोसिटी होगी बेटा, एवरेज वेलोसिटी होगी। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी ज्यादा है या वेलोसिटी कम है, उनकी संख्या भी बेटा क्या है, कम है। बात समझ आ रहा है। और चौथा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, चौथा पॉइंट आपका ये कह रहा है यहां से यहां तक क्या कहीं भी कोई ब्रेक है आपका, नहीं है। ग्राफ कहीं टूटा फूटा है आपका, नहीं है। मतलब क्या कि मॉलिक्यूल्स में जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा वो क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि हमको ऐसे मॉलिक्यूल भी मिलेंगे जिनकी वेलोसिटी कम हो, ऐसे मॉलिक्यूल भी मिलेंगे जिनकी वेलोसिटी क्या हो बेटा, ज्यादा, पर उनकी संख्या क्या होगी बेटा, कम। बात समझ नहीं आ रहा है कि यहां से यहां तक, क्योंकि ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब यही है कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटा क्या है, यूनिफॉर्म है ना। बात समझ आ रहा है क्या बेटा, क्लियर है ना। मतलब हर तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होंगे, पाए जाएंगे। डिपेंड करेगा संख्या कितनी है। उन मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होगी जिनकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, एवरेज होगी। और उन मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी जिनकी वेलोसिटी कम हो या ज्यादा। बात समझ आ रहा ना, ठीक है। यही चीज आपने 4 पॉइंट में क्या कर दी है, मेंशन। बात समझ आ रहा है, आसान था, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। शुरुआत आपने कहां से किया था, आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला लिखा, वहां से फिर dn/dc की वैल्यू निकाली और dn/dc और c में ग्राफ प्लॉट किया। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको 4 पॉइंट मिले, समझ में आया। और उन्हीं 4 पॉइंट को आपने क्या कर दिया बेटा, मेंशन कर दिया। बात समझ आ रहा, आसान लगा होगा आपको, पढ़ेंगे तो आसान। देखिए बहुत आसान चैप्टर है, थ्योरी है इसमें, कहीं से कुछ मैथमेटिक्स नहीं, सिर्फ थ्योरी है। जब पढ़ेंगे आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, बिठा दे इसको। चलिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और अगर आधे घंटे में ये खत्म हो गया, एक टॉपिक और पढ़ा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा ये, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ साथ में पढ़ाने को दिक्कत नहीं तुम लोगों को है, कोई दिक्कत नहीं ना जो है लड़कियों। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। कल अगर तुम लोग की क्लास चली होती, मतलब कल तो 26 जनवरी था, पॉसिबल नहीं था, अगर समहाउ कोई नॉर्मल दिन रहा होता और पढ़ा दे रहे तो आज हम तुमको नहीं पढ़ाते, आज छुट्टी दे देते।
पर कल की क्लास चली नहीं इसलिए आज शाम में पढ़ाना मजबूरी थी। चलिए, और आपको पता है कि ज़्यादा काम करते नहीं। एनर्जी स्टेटमेंट ठीक है। हाँ क्या एनर्जी स्टेटमेंट ज़्यादा काम बेटा नहीं करना चाहिए, समझ रहे आप ना। और ठंडा में तो और नहीं निकलता है यार ज़्यादा काम, समझ रहे आप ना। ठंडिया जाग चली आ रही, कब गई थी, कब आ गई? कल तो अरेस्ट में थी बस। हाँ सुबह देखिए फिर से आ गई बैक इन फॉर्म। कल बहुत गनीमत ये था, जैसे हम कल आउट ऑफ टाउन थे, कार से गए थे बाहर, सिद्धार्थ नगर गए थे, तो आते समय ये था कोहरा गिरेगा, आज समय कोहरा नहीं गिरा। हम क्या ठीक क्या हो गया, कोहरा गिरना सुबह धूप है तो कोहरा गिरना चाहिए, खैर कोहरा गिरा नहीं। सुबह भी उठे हैं हम 9 बजे, क्योंकि भाई 1 बजे रात में आए थे तो ये था कि कुछ पढ़ाना नहीं है, पहले पढ़ा 9 बजे उठे। जब 9 बजे उठे तो मम्मी कहीं कि यार बहुत ठंडा पड़ रहा है। हम कहा हाँ इसी की ठंडा पड़ रहा है। क्या फिर बताएं कि आज ठंडा ज़्यादा था। सुबह निकले जब कॉलेज गया तब देखे हम कह रहे यार ये तो अलग लेवल की ठंडा कभी क्या ये सब पाप है हम क्या। इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर लीजिए कि इन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके लिखिए इन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, और इसको आप इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग कर दीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ आए ना आए ये जरूर आता है बेटा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये जरूर पूछा जाता है आपको, कई बार पूछा गया होगा। अगर आप अनसॉल्व के कांटेक्ट में होंगे, अनसॉल्व देवता को अगर आप पूजा वगैरह करते होंगे बोलते होंगे तो आप देखेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। पूजा वगैरह करते नहीं अनसॉल्व का दिया करिए, जहाँ पूजा पाठ करते हो अगर खीर रोटी खाया करिए उसको, वही पास कराएगा आप लोगों को। बाकी कर्म आप लोगों के लगे हैं पास होने वाले। ठीक है आपकी इन्वर्टेड कॉमा करके लिखिए इन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स there is an uniform distribution of energy. There is an uniform distribution of energy in each degree of freedom. In each degree of freedom or coordinate axis. In each degree of freedom or coordinate axis. According to law of equipartition of energy. According to law of equipartition of energy. According to law of equipartition of energy. Average energy associated with average energy associated with each degree of freedom. Average energy associated with each degree of freedom is 1/2 kT. 1/2 kT. 1/2 ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक बार जरा पूरा पढ़ डालिए। और हमको ये पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये नहीं पता होगा तुम लोगों को। सर क्या पूछ रहे थे? डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें जितने कोऑर्डिनेट्स एक्सिस की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक, वेरी गुड। ठीक, पढ़ा जल्दी देखो इतने में नालायक नहीं है, तुम जितना हम समझते थे आज 2 बार इम्पोर्टेंट हो गया, कहीं बाढ़ ना आ जाए। केमिस्ट्री में सब पढ़ाया होगा तुम लोगों को। हाँ सबको पढ़ाया गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, बचपन में पढ़े थे, अब तक याद है। बीच में
साल गैप भी तो हो गया कोरोना वाला, 1 साल या 2 साल। इंटर में प्रमोट थे कि पास थे? पास थे सर। पास थे ना, कब से? कब से पास थे? हम पूरा प्रमोट हो गए टीचर, नहीं तुमको नहीं प्रमोट थे, जो फर्स्ट ईयर में वो प्रमोट। आप लोग एग्जाम देके आए थे, वही तो आखिरी बार पढ़े थे आप लोग, उसके बाद ना पढ़े थे। आखिरी बार एग्जाम दिए थे। हाँ वही आपने वो पढ़े भी वही थे, पढ़े भी वही थे और क्या। भाई देखिए एग्जाम टाइम में कैसे पढ़ाई होती है, उससे पहले तो आप बस झूठ बोलते हैं, खुद से भी और घर वालों से भी। आप ही जानते हैं कितना पढ़ाई हो रहा है, जो फोकस पढ़ाई होती है एग्जाम टाइम में होती है। बाकी मैथ्स की प्रैक्टिस आप करते रहते हैं, मैथ्स तो लगाना रहता है रोज, मजबूरी है। बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई एग्जाम में ही होती है कहते हैं। ये आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, सर भी को भी स्टूडेंट थे वो जानते हैं, जैसे साथ में वो थे सर को भी स्टूडेंट थे वो जानते हैं। मैथ्स डेली के डेली, फिजिक्स अब तो मैं करेंगे। हाँ वही कह रहा ना, वो होता है मैथ्स, लोग मैथ्स का प्रेशर रहता है, मैथ्स का हुआ रहता है नहीं प्रैक्टिस, और सही बात भी मैथ्स प्रैक्टिस अगर नहीं करें छूट जाएगा मैथ्स। फिजिक्स में क्या है कि भाई कुछ याद करना है, कुछ डिराइव करना है तो हो जाता है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है इसमें, देखिए समझ पहले, इसमें ये कहा जाता है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल में जो एनर्जी होती है बेटा वो कितनी होती है 1/2 kT, ठीक है ना। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस समझिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या समझिए बेटा, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स required to describe the motion of particle is called degree of freedom। बात समझ आ रहा ना कि उन की मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब उन वेरिएबल्स की संख्या जिनसे पार्टिकल के मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकें, वही क्या कहलाता है बेटा, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। बस उसकी संख्या क्या होनी चाहिए बेटा, मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम जिनसे हमारा काम चल जाए। मान लीजिए कि XYZ प्लेन में अगर आप हैं और आपका काम सिर्फ x एक्सिस पे चल रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा बेटा, आपका 1 हो जाएगा, है ना। और डिग्री ऑफ फ्रीडम में करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, आपका x वाला हो जाएगा, है ना। y एक्सिस से आपका x और y से सिर्फ आपका काम चल जा रहा है XYZ प्लेन में, तो x और y क्या हो गए आपके कोऑर्डिनेट हो गए, और x और y क्या हो गए, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब x और y कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए, तो नंबर 2 ही क्या हो गया आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। और x y z तीनों की आपको जरूरत पड़ रही है, x y z कितना हो गया, 3 हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बेटा हमारा 3 हो गया। बात समझ आ रहा है ना, जितने मिनिमम नंबर से हमारा काम चल जाए वही मिनिमम नंबर क्या कहलाता है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। बात समझ आ रहा है, 1 से काम चल रहा है तो 1, 2 से काम चल रहा है तो 2, 3 से काम चल रहा है तो XYZ प्लेन में अगर 1 से काम चल रहा है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2 से काम चल रहा है तो 2 है, तीनों से काम चल रहा है तो 3 हो जाएंगे। बात समझ आ रहा है ना, चलिए क्या देखिए आइए इसका प्रूफ कर देता है, ठीक है सर, ठीक है। देखिए प्रूफ से पहले जरा एक डायग्राम बना लीजिए, प्रूफ से पहले एक डायग्राम बना लीजिए, आइए जरा डायग्राम बना लेते हैं। ये इधर x एक्सिस हो गई, इधर बेटा आपकी y एक्सिस हो गई, और इधर क्या होगी बेटा आपकी z एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए इधर o दिखा देंगे हम, ठीक है। x एक्सिस पे, x एक्सिस पे आप एनर्जी दिखा दीजिए, वन बाई टू mu स्क्वायर 1/2 kT, ठीक है ना। 1/2 बेटा बात में mv स्क्वायर 1/2 kT, और इधर आप दिखा देंगे कितना 1/2 m w स्क्वायर 1/2 kT, हर तरफ 1/2 kT कर दीजिएगा, ठीक है। और इधर आप दिखा दीजिएगा कैसे दिखा दें इसको, वन बाई mc स्क्वायर इज इक्वल टू 1/m u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, छाप दीजिए। और मॉलिक्यूल के इधर जाने की प्रोबेबिलिटी बेटा कितना है 1/3, और इधर भी कितना बना देंगे
ये बताते हैं फिगर में समझा देते हैं छापे फिगर का नाम देगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ फिगर का नाम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी law of equipartition. जल्दी बताइए कुछ चीजें समझ आएगी तो पूछ लीजिएगा अभी बता देते हैं वैसे घबराए अभी हम बता देंगे बन गया बाबू ठीक है अब देखिए समझिए पहले देखिए मॉलिक्यूल अगर हमारे सेंटर पर है मॉलिक्यूल हमारे सेंटर पर है ठीक है ना और कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं उसके पास वो x में भी जा सकता है y में भी जा सकता है z में भी जा सकता है तो आप ये बताइए x में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा 1/3 y में जाने की कितनी होगी 1/3 z में जाने की कितनी होगी बेटा 1/3 ये बात आपको समझ आ रही नहीं आ रही अगर मॉलिक्यूल हमारा ओरिजिन पर है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो x में भी जा सकता है y में भी और z में भी तो हर एक्सिस के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना हो बेटा हमारा 1/3 बात समझ आ रहा ना और x एक्सिस पे अगर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बेटा कितनी है u है y पे कितना लिया बेटा आपने v लिया है और z पे कितना लिया बेटा आपने w लिया है ठीक है ना और ओवरऑल वेलोसिटी अगर आपकी c है ओवरऑल वेलोसिटी कितनी बेटा c है तो c के देखिए तीन कंपोनेंट होंगे x वाला y वाला और z वाला ठीक है ना तो हाफ mc² को क्या आप 1/2 m u² + v² + ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं जी हाँ लिख सकते हैं बात समझ नहीं आ रहा अरे भी यार कोई ऐसे थोड़ी मान लीजिए c है c आपकी वेलोसिटी है ठीक है ना वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट हैं हमारे u + v लिखिएगा नहीं ये सब प्लस ओमेगा x एक्सिस में u y एक्सिस में v z एक्सिस में ओमेगा ठीक है ना तो अगर आप इसका मॉड c निकालेंगे तो मॉड c किसके इक्वल आ जाएगा u² + v² + ओमेगा स्क्वायर के मॉड c या सिर्फ c कर दीजिए यहां पे और अगर आप c स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी u² + v² + ओमेगा स्क्वायर वही तो लिखा गया है ना कि अगर गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mc² है तो हाफ mc² किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 m u² + v² + समझा है छापी लिखिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिखिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल is given by the kinetic energy of ideal gas molecule is given by बिठा दे इसको is given by half mc² किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 m u² + v² + ओमेगा स्क्वायर ठीक है मतलब इसको इक्वेशन बनी इसको इक्वेशन और फिर लिखिए where u, v, w लिखिएगा where u, v and w are
components of are components of molecular velocities are components of molecular velocities along x comma y and z axes respectively. ठीक है, चलिए फिर लिखिए since there is equal probability for motion of molecules along x comma y and z axes along x comma y and z axes respectively. Hence how mu square is equal to half